to listen to him a couple of times during my old club and even in Ashoka. He speaks extremely well. He can keep the audience absolutely together for as long as he wants. And today, Dr. Saab is actually going to brief us on life after Corona, or maybe with Corona. Once the lockdown is over, how the lifestyle changes we all have to adapt to, considering this disease which has actually engulfed the entire world today. Without taking much time, I'll just request Dr. Saab to take over the meeting right away. And then we can have a Q&A after Dr. Saab has given his insights on life after Corona. Dr. Saab, please. Dr. Saab, you'll have to unmute yourself. Thank you, Ambik, and thank you, fellow Rotarians. Today, I'm going to be very specific. I'm going to talk in both English and English, and the discussion will be purely on Corona or COVID. As the time is less, 5 o'clock, I have another meeting. So I will be briefly touching about all aspects. I was attending a meeting with JP Nadda today, and we were a part of a think tank meeting with him. And the basic question was how long we should be prepared. The government answer was 1 year. That means for the next 1 year, our lifestyle will change. Then I talked to WHO and they said 2 years. And my own thinking is not less than 4 years. And the reason being that Spanish flu lasted for 3 years. It affected 30% of the society, then it went away. Today, 10% of the international, total global society has already been infected with coronavirus. In India, we don't know the percentage, but the only study available is South Korea. 5.7% of South Koreans have already got the infection. We don't have to see the number of deaths. The actual number of deaths may be less than 1%. But the level of infection is very, very, very high. The aviation industry, we had a meeting with them and they said that we are not going to be normal for the next 4 years. The shipping industry says we may never be able to come back to the normalcy. The reason being everybody will have a situation like if one case comes, they will become like struck like Diamond Princess ship in the Japan. So डर तो सबके मन में है. Number 1. Number 2 is हम सब लोग रोज टीवी में देख रहे हैं टेस्ट. मैं आपको एक सिंपल वे में समझाता हूँ कि मेरे मोहल्ले में, मेरा मोहल्ला ग्लोब है, समझ लो मेरा मोहल्ला है, उसे ग्लोब बोल रहा हूँ मैं. उसके अंदर में गैंगस्टर्स आ गए और वो गैंगस्टर्स जो हैं उसे कोविड-19 वायरस बोलते हैं. अगर मैंने गैंगस्टर को, वो छुप गए मेरे मोहल्ले में, घरों के अंदर डीप इनसाइड घुस गए, और अगर मैंने आके एक गैंगस्टर को पकड़ लिया तो मैंने बोला कि हाँ ये वाला गैंग है क्योंकि इसके हाथ में ये निशान बना हुआ है और उसने कब गया है. इसे हम बोलते हैं RT-PCR टेस्ट. सो वो घर पे आए, मेरी कॉलोनी में आए, उन्होंने आके RT-PCR से पकड़ लिया. लेकिन अगर RT-PCR नेगेटिव आया, इसका मतलब ये नहीं है कि गैंगस्टर वहां नहीं है. अनलेस दे गो डीप इनसाइड, जिसे हम बोलते हैं कि नाक का सैंपल लिया, कि मुंह का सैंपल लिया, कि गले का सैंपल लिया, कि सांस की नली का सैंपल लिया. जैसे जैसे मैं अंदर जाऊंगा सैंपल चांसेस ज्यादा है. जैसे जैसे मैं घर में घुसूंगा अंदर मुझे उनके पकड़ने के चांसेस ज्यादा है. 7 दिन के बाद में जब मेरी PCR वैन ने कुछ नहीं किया तो वो रेगुलर पुलिस को भेजेगी. पुलिस 2 प्रकार से आएगी, या तो वो बंदूक लेके आएगी या खाली हाथ आएगी. अगर मैं जाके देखता हूँ कि कॉलोनी के अंदर में बंदूक वाले पुलिस खड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि अभी भी वहां पे गैंग अभी भी पूरा खत्म नहीं हुआ है. इसे मैं बोलता हूँ IgM टेस्ट, एंटीबॉडी IgM, यानी कि एंटीजन अभी है. पुलिस वो अभी तक गैंगस्टर अंदर हैं, पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पा रही. इसे बोलते हैं IgM. और अगर मैं वहां देख रहा हूँ कि पुलिस वहां सारी सादा कपड़ों में है या ड्रेस के अंदर में, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं है, तो आई प्रिज्यूम सारे के सारे गैंगस्टर वहां से भाग गए. इसे बोलते हैं IgG टेस्ट. So therefore IgG test is to find out मेरे कॉलोनी में कभी गैंगस्टर आए थे कि नहीं थे. IgG doesn't tell me कि आज मेरी कॉलोनी में गैंगस्टर है कि नहीं है. और अगर IgM पॉजिटिव है तो ये बताता है कि पुलिस भी है और गैंगस्टर भी है, ये आपस में फायरिंग कर रही है. मेरे जो गैंगस्टर है वो अभी तक पुलिस फायरिंग कर रहे हैं. ये 7 दिन के बाद पता लगता है.
7 दिन से पहले का सारा काम मेरे को पीसीआर वैन करती है, जिसे आरटी-पीसीआर बोलते हैं। आरटी-पीसीआर का चांसेस सिर्फ 70% है, यानी कि 100 लोगों को कोविड पॉजिटिव टेस्ट है और 100 बार आपने 100 लोगों ने पीसीआर वैन बुलाई तो 70% लोगों को बोलेगी कि मेरे को मिल गया और 30 में बोलेगी मेरे को नहीं मिला। जब नहीं मिला तो आप क्या बोलोगे फोन करके? तुम निकम्मे हो, तुम तो अंदर तो घुसे ही नहीं, मकान के अंदर में, हवेली के अंदर तो घुसे ही नहीं, तुम तो छत पे गए नहीं ढूंढने के लिए, दोबारा आओ। इसे बोलते हैं रिपीट टेस्ट। रिपीट टेस्ट में इसके चांसेस 80% हो जाते हैं। 20% फिर भी जो आरटी-पीसीआर वाली वैन है वो कहती है मेरा काम नहीं है, आप दूसरी पुलिस को बुला लो बंदूक वाली। So therefore my efficacy of testing is only 70 to 80%. Therefore अगर मेरे को सिम्टम्स हैं, और मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो मैं पॉजिटिव हूँ, फॉल्स पॉजिटिव नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक गैंगस्टर के बदले दूसरे गैंगस्टर का नाम ले लिया, लेकिन फॉल्स नेगेटिव होगा। So therefore if you are positive, you are positive. If you are negative, you may still be positive. तो क्या मतलब हुआ टेस्ट का आम जनता के हिसाब से? आप हॉस्पिटल में गए कि आपने बोला कि वो बोलेंगे टेस्ट कैसा निकला, मेरे को सर्जरी करानी है, तो आप क्या बोलोगे? सर्जरी के टाइम पे आप बोलोगे मैं तो पॉजिटिव हूँ। फिर ठीक है, बोलेंगे हम आपको ऑपरेशन नहीं करेंगे, अभी पॉजिटिव हो रिकवर कर जाओ। अगर आप बोलोगे नेगेटिव हो तो बोलेंगे मुझे क्या पता है कि तुम नेगेटिव हो सकता है अभी भी तुम पॉजिटिव हो। फंस गए ना आप लोग। सो therefore when we know that we cannot find out if somebody is positive or not, जब से ये चक्कर चला है कि you can be asymptomatically positive, I am worried. Therefore presume everybody is positive, presume every surface is positive. Therefore I have no choice than to take standard precautions. उसके साथ में जो है, अब पुलिस क्या बोलेगी इस घर के अंदर में कोई भी आदमी जो है वो ग्रुप में नहीं बैठेगा, 3-3 फुट दूर बैठोगे, पकड़ में आ जाएगा ना टेररिस्ट। अगर एक कमरे में 10 लोग हैं, आप किसको ढूंढोगे? लेकिन अलग अलग बैठे हैं तो पुलिस आराम से आके ढूंढ लेगी। तो सोशल डिस्टेंसिंग विल कंटिन्यू एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 years. यू कांट अवॉइड इट। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप छोटा डिस्टेंस है तो पैदल जाओगे, वापस साइकिल पे आओगे। अब लिफ्ट में जा रहे हो तो आप सोचोगे कि लिफ्ट में तो ऑलरेडी 10 लोग हैं, आप नहीं जाओगे, धक्का बुक्की नहीं करोगे। आप मेट्रो में जाओगे तो देखोगे कि यहाँ पे डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, आप रुक जाओगे कि मैं अगली मेट्रो लूंगा। अब आपके पास टाइम है। आई विल टेल यू द कोलेटरल बेनिफिट्स। 40% मौतें कम हो गई हैं। अगर आप शमशान घाट में जाओ, you will find 40% of cremation grounds are empty. You go to any hospital, you will are empty. You talk to doctors, they will say we have no patients. Telemedicine चालू हो गई है, but still the patients are not there. The reason being 2 precipitating factors have gone. One is pollution, which is 60% less, and second is the stress. अब आप सोच ही नहीं रहे, अब आपके पास में ना फैशन का टाइम है, क्या करोगे फैशन करके? जमीन के ऊपर में आपने शू कवर पहनना है, सर के ऊपर में आपने जो है टोपी पहननी है, तो फिर बाल बना के ब्यूटी सैलून में जाने का मतलब क्या है? चेहरे में मास्क पहनना है तो लिपस्टिक का मतलब क्या है? चेहरे पे आपने इतना सारा जो अपने जो चेहरे को सजाना वजाना है उसका मतलब क्या है? कपड़ों के ऊपर में डॉक्टरों को मास्क पहनने हैं तो डॉक्टरों ने क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा कपड़ा खरीदा है, कौन सी ब्रांड का है उसके साथ में। द लाइफ इज गोइंग टू चेंज, द लाइफ इज गोइंग टू बी सिंप्लिसिटी। आपकी अपनी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, अपने कमाने की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, आपके खर्चे कम हो जाएंगे। आपको कहीं पर भी जाना है, सादगी वापस आएगी। जितने महंगे कपड़े होंगे सबसे पहले आप पूछोगे कि इसमें कोविड ठहरेगा कि नहीं ठहरेगा। आप किसी भी दुकान पे जाओगे, मॉल के अंदर में नहीं जाओगे आप, क्योंकि नाउ योर रिएक्शन योर टाइम विद अ पर्सन विल नॉट बी मोर देन 3 minutes। नाउ कोरोना कैसे फैलता है? मैंने आपसे बातचीत करी, मान लीजिए आप कोरोना पॉजिटिव हो, आपने भी मास्क नहीं पहन रखा, मैंने भी मास्क नहीं पहन रखा, मैं आया आपसे मिला और चला गया, मुझे कोरोना नहीं होगा। उसके लिए कम से कम मेरे को 5 से 30 मिनट का इंटरेक्शन चाहिए आपसे।
सिर्फ एक कनिका कपूर ने 100 लोगों से मिली, किसी को इन्फेक्शन नहीं दिया, क्योंकि सबसे वो आधा आधा मिनट मिली होगी या आधा आधा 10-10 सेकंड मिली होगी। जब तक आपका कांटेक्ट टाइम 5 मिनट से 30 मिनट तक का नहीं है, इसका मतलब है अब आप क्या करोगे, कहीं जाओगे तो जल्दबाजी में करोगे, बोले अच्छा 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 ये बताओ क्या करना है, बाकी फिर जूम पे बात करेंगे। दैट विल बी योर लाइफ। आप लोगों से मीटिंग करोगे तो बोलेंगे ठीक है जल्दी से आ जाना, एग्रीमेंट साइन करेंगे, डिस्कशन जूम पे कर लेंगे। ये होगा जब तक 60% सोसाइटी को ये इन्फेक्शन नहीं होगा, तब तक ऐसा चलेगा मेडिकली। हाँ, कल कोई ऐसी दवाई आ जाए बात अलग है, कल कोई नई दवाई आ जाए जो मिरेकल हो बात अलग है, कल भारत वैक्सीन ले आए बात अलग है। इंपोर्टेड वैक्सीन पे डिपेंड मत करो। अभी चाइना सबसे पहले पैसे कमा रहा है, अपने जो लॉस हुआ था पूरा कर रहा है। अब सेकंड अमेरिका का जितना इकोनॉमिकल लॉस हुआ है वो एक वैक्सीन से पूरा कर लेगा। इतना महंगा वैक्सीन कर देगा दुनिया के लिए कि वो जो अमीर लोग हैं उनसे ही पूरा पैसा वसूल लेगा। जब तक भारत में वैक्सीन नहीं आता, वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन आएगा अमेरिका वैक्सीन लाएगा, कोरिया वैक्सीन लाएगा, चाइना वैक्सीन लाएगा, वो पैसा कमाने के लिए आ रहा है। और चाइना तो अपना गंदगी बेच रहा है। दो चीज याद रखियो फेलो रोटेरियंस, अमेरिका इज नॉट द बॉस एंड चाइना इज नॉट रिलायबल टुडे, वी हैव लर्न दैट। अमेरिका सबसे बुरा हाल है उसका, ना वो पहचान पाया, ना वो टाइमली एक्ट कर पाया। और आज हमारे पास मौका है वर्ल्ड के अंदर में अथॉरिटी बनने का, क्योंकि हमारे यहाँ पे मिनिमम डेथ्स हैं। हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो पूरी दुनिया का सबसे अच्छा है। हमारे यहाँ पे मिनिमम डेथ्स हैं 0.6 पर मिलियन पॉपुलेशन, which is the lowest. So therefore it is a time for us to lead the country. आप जो ये रोटरी का जो प्लेटफॉर्म कर रहे हो, क्रिएट ए इंटरनेशनल मीटिंग, नेशनल नहीं, डिस्ट्रिक्ट की भी नहीं, आप लोग होस्ट करो इंटरनेशनल रोटेरियन मीटिंग। देन यू विल फाइंड कि हम लोग कितना एडवांस हैं, वो लोग कितना वहां पे परेशान है। हर कंट्री परेशान है इस वक्त में, उनके पास कोई आंसर्स नहीं है। तो याद रखो, नंबर 1 इज 3 मिनट से 5 मिनट से ज्यादा किसी से मीटिंग नहीं रखनी। अगर कहीं पर भी घर में कोई आ रहा है, बोलो अतिथि देवो भवा। घर में कोई भी आ रहा है उसको बोलो अतिथि देवो भवा। बोल पहल बाहर जूते के बदले शू कवर पहन। फिर उसको बोलो कि बाहर हम देखो लोटा लेकर आए, तेरे पैर धुलवाएंगे। पहले पुराने जमाने में करते थे ना, पैर धुलवाएंगे ताकि कोरोना लेके मेरे घर पे ना। फिर आप उसके हाथ धुलवाओ, फिर उसको शू कवर दो, फिर उसको बोल कुल्ला कर अच्छे से। कुल्ला करने के बाद में आप उसको प्रणाम करोगे। प्रणाम करने के बाद में उसको सिंहासन पे बिठाओगे, यानी कि अपने से दूर ऊंचे, ताकि मेरे से 3 फुट दूर रहे। लिया जितना बचता रहता है, ये होता था ना पहले। वापस आ गया, वापस आ गया। आप घर में किसी को भी लाओगे, मन में डर होगा, बोलोगे तू सिंहासन पे बैठ, मैं तेरे बगल में नहीं बैठूंगा। अभी मलेशिया के अंदर में एक कैंपेन आई, ग्लव्स पहन के हाथ मिलाओ, गलत। कहीं पे कैंपेन आई, ग्लव्स पहन के एक दूसरे को किस करो, गलत। कहीं पर कैंपेन आए कि वो हाथ से हाथ मिलाओ, गलत, क्योंकि खांसी आप यही कर रहे हो। ये जो कैंपेन आई थी ना कि हाथ से हाथ मिलाएंगे, गलत। वापस नमस्ते ही आएगा। आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, यू हैव टू गो बैक टू इंडिया। पुराने जमाने में औरतें पर्दा करती थी, वापस आ गया ना वापस पर्दा। पुराने जमाने में जो मुसलमान औरतें बुर्का पहनती थी, वापस आ गया। वो स्पेनिश फ्लू के बाद चालू हुआ था उस वक्त में, ये सारे कस्टम चालू हुए थे 1918 में। स्पेनिश फ्लू के बाद में बचाने के लिए वापस आ गए। सारे जैनी लोग पट्टी पहनते थे मुंह के अंदर में, वापस आ गया। हम सब लोग पहन रहे हैं, अब पता नहीं लगेगा कि कौन जैनी है कौन नॉन जैनी है। सब लोग पहनेंगे, कम से कम 1 साल तक पहनेंगे। मैं अभी सितंबर में जापान गया, तो उस वक्त में दिल्ली में पॉल्यूशन था, तो वहां मैंने देखा सब लोग मास्क पहन रहे थे कॉन्फ्रेंस के अंदर में। So I was worried, I was astonished. मेरे को लगा शायद वो पोल्यूशन के लिए पहन रहे हैं। Now I realize कि after SARS, जब SARS आया था हांगकांग में और इस चाइना में और सिंगापुर में, तो उन लोगों ने तो पैटर्न ही बना लिया था कि हम बाहर निकलेंगे मास्क पहन के निकलेंगे। हम लोग तो अब कर रहे हैं। पूरा साउथ कोरिया, पूरा सिंगापुर, पूरा हांगकांग पूरे साल मास्क पहन के बाहर निकलता है। और उस वक्त पे मैंने एक स्टोरी करी जो टीवी में खूब फेमस हुई। मैंने बोला कि सिंगापुर के अंदर में 30 के पॉल्यूशन पे भी लोग मास्क पहन रहे हैं। वो पॉल्यूशन के लिए नहीं पहन रहे थे, उन्हें डर था कि सार्स दोबारा ना आ जाए, और आ गया। ये सार्स 2 है, भेष बदल के आ गया। सार्स 1 जो है भेष बदल के सार्स 2 के रूप में आ गया हमारे पास में। सो बेसिकली मेरे जो पॉइंट्स हैं
because it's another 20 minutes. I like to answer your questions than to speak out only. ये चीज याद रखो, ये रहेगा 1 साल से 4 साल तक रहेगा। 4 साल के अंदर में सादगी से रहना है। लॉकडाउन कम से कम 4 साल तक रहेगा, लेकिन मोदी जी वाला लॉकडाउन नहीं, पर्सनल लॉकडाउन, पर्सनल डिस्टेंसिंग। जो चीज लॉकडाउन में बाहर हो रही है उसको भूल जाओ, लेकिन घर में आप अपना लॉकडाउन रखोगे, सफाई रखोगे, हाथ साफ करोगे, जिस सरफेस पे बैठ रहे हो उसको डिकंटामिनेट करोगे, आप डिस्टेंसिंग रखोगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखोगे, वो सब करोगे। अभी मेरे पास में मेरी एक हेल्पलाइन चल रही है जिसमें एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया, बोला साहब आपने सोशल डिस्टेंसिंग कर दी, तो अब तो मेरी बीवी कह रही है मैं जा रही हूँ। भाई सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि मैरिड लाइफ नहीं जी रहे। अगर आप दोनों को इन्फेक्शन नहीं है तो यू आर लिविंग ए नॉर्मल मैरिड लाइफ, लेकिन आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सारे बंद हो जाएंगे। पता नहीं कोविड पॉजिटिव है कि नहीं है। आपकी सारी ज्वेलरी कम हो जाएगी, पता नहीं मेरी ज्वेलरी के ऊपर में जो है घर में आके किसमें साफ करूंगी, किसको गीला करूंगी, तो सादगी वापस आएगी। तो सारी सादगी वापस आने वाली है एटलीस्ट 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। हमारे यहाँ पे वेदों में 4 चीज बोलते हैं, यूफोरिया। सारे रोटेरियंस क्या बोलेंगे, अरे मोदी जी बोल रहे हैं, मैंने कहा था ना लॉकडाउन बढ़ाएंगे 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 बढ़ाएंगे, एवरीबॉडी इज हैप्पी। देखो मेरी बात सुन ली, मैंने भी कहा था बढ़ाएंगे। दैट इज यूफोरिया। एंड देन यू स्टार्ट रिएक्टिंग, माय गॉड क्या है, बाहर नहीं निकलना पड़ रहा, सिगरेट छूट गई, शराब दोस्तों के साथ में पीता था वो नहीं पी पा रहा। एंड देन यू से एडजस्टमेंट, द फेज विल बी ऑफ एडजस्टमेंट, कि कोई बात नहीं अब तो एडजस्ट कर ही लिया, ऐसे ही करेंगे। एंड देन विल बी लाइकिंग, all of you will start liking after 40 days of, you will not react. I'm 100% sure अगर मोदी जी कल डिक्लेयर कर देते हैं कि और 10 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं, you will not react because now you have adjusted your life into it. And I am 100% sure all of you now will start saving yourself. You are not bothered about others. You says मेरा घर सलामत रहे, मेरा परिवार सलामत रहे, मैं सलामत रहूं। तो इसलिए कल क्या होगा कि आप बस में जाओगे, कोई आदमी वहां पे बिना मास्क के डांट खांस रहा है तो आप क्या बोलोगे, अरे कोरोना फैलाएगा क्या, गाड़ी को रोको, या मैं उतरता हूँ या इसको उतारो। ये होगा, ये होगा, कल से ये होगा। जहां पर भी जाओगे, प्लेन में जाओगे तो नॉन एसेंशियल आपकी ट्रेवल बंद 1 साल के लिए। डरोगे आप जाते हुए कि कल मैं किसी जगह पे होटल में गया और उस होटल के अंदर में कोरोना पॉजिटिव आ गया तो मेरे को वो 28 दिन के लिए बंद कर देंगे, 14 दिन के लिए वो रखेंगे, फिर दिल्ली में उतर के 14 दिन के लिए दिल्ली वाले आपको बंद करके रखेंगे, 28 दिन के लिए बंद कर देंगे। अभी कुछ लोग जो अमेरिका से या बाहर से ऑपरेशन कराने आते हैं, यहाँ पे इंडिया में ऑपरेशन कराने आते हैं, तो पता क्या हो रहा है, अब जो नया रिकमेंडेशन जो सारे होटल्स बोल रहे हैं उनको, बोले आप लोग ऑपरेशन कराने दिल्ली में आओ, पहले हम 14 दिन आपको क्वारंटाइन करेंगे, फिर आपका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद में आप ठीक हो जाओगे, फिर आप अपनी कंट्री में जाओगे, फिर 14 दिन का क्वारंटाइन करोगे। यानी कि एक ऑपरेशन जा रहे हो तो 28 दिन पक्का है। So I like to take question answers. One of the members, Sanjay Rastogi ji, had a question, Dr. Saab. Sanjay ji, आप please पूछिए. Dr. Saab, good evening, and good evening to all the members. Dr. Saab, what is the risk of buying vegetables from vendors or grocers, and then how do you tackle the goods or the vegetable or groceries that you bring? 3 लोगों को, एक गाजियाबाद में और एक आजादपुर में और एक मेहरौली में, 3 वेजिटेबल वेंडर्स की डेथ हो चुकी है। सब लोगों के मन में डर है कि मैं क्या करूं। उस डर को मिटाने का एक ही तरीका है, उस डर को मिटाने का एक ही तरीका है कि आप कपड़े का बैग लेकर जाइए, सब्जी उसमें डलवा लीजिए, घर में वापस आप हमेशा ग्लव्स पहन के जाइए। ग्लव्स पहनने के बाद में आपने क्या करना है, उसके बाद में आपने कपड़े के बैग के साथ में घर में वापस ले आए, उस बैग से आपने पानी के अंदर में डाल दिया, उसको पानी के अंदर में वो पड़ा रहेगा, पानी के अंदर में उसके अंदर में 0.1% ब्लीचिंग सोल्यूशन है। 1 मिनट में 0.1% ब्लीचिंग सोल्यूशन में सारे वायरसेस अगर होंगे तो मर जाएंगे। उसके बाद में आपने कागज को डिस्पोज ऑफ कर दिया, अपना हाथ से आपने जो ग्लव्स पहन रखे हैं वो उतार दिए, नाइट्राइल ग्लव्स होते हैं, 1 रुपए का एक ग्लव आता है। उसके बाद में सब्जी निकाल के आपने स्टोर कर दी, फिर आपने अपने हाथ धो लिए।
that is the only way of doing it. आप सब लोगों ने ये मास्क पहनने हैं, या कपड़े का मास्क होगा या ये वाला मास्क होगा. मान लीजिए ये वाला मास्क मैंने पहन लिया. अब इसके अंदर में मैं बस में बैठ गया, वहां लोग खांस रहे हैं और मैं फंस गया. मैं ट्रेन में बैठा हूँ, कोई आदमी चढ़ गया, खांस रहा है, उसके पास ग्लव नहीं है. अब मेरे को कम से कम 15 मिनट के लिए मैं फंस गया. तो ये साथ में लेके चलिए अपने साथ में. ये 3 रबड़ बैंड हैं, बीच वाला आपस में जुड़े हुए हैं. तो बीच वाले रबड़ बैंड को आप अपने नाक के ऊपर लगा के नीचे लगा लिया और इन 2 को अपने कान में लगा लिया. अब आपका जो मास्क है वो एयर टाइट हो गया. अब आपका जो मास्क है वो एयर टाइट हो गया. अब इस मास्क के अंदर में जितना मर्जी वो खांस ले, अंदर नहीं घुसेगा. सो टेम्परेरीली 15-20 मिनट के लिए आप इसको एयर टाइट कर सकते हो. बाजार में जो मास्क होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं. एक होता है सिंगल प्लाई, एक डबल प्लाई और एक ट्रिपल प्लाई. ऑल ऑफ यू शुड अंडरस्टैंड, ये सिंगल प्लाई है, यानी कि एक ही टाइप का मास्क है. ये मेरा रुमाल है, एक ही टाइप का है, कपड़ा एक ही टाइप का, मैंने इसको बांध लिया. इसके ऊपर में भी मैं रबर बैंड से इसको टाइट कर सकता हूँ. ये जो मास्क है जो बाजार में मिलते हैं इसे 3 प्लाई बोलते हैं. 3 प्लाई का मतलब है 3 शीट्स. आउटर वाली हाइड्रोफोबिक, ताकि सिक्रीशंस गिरे और नीचे गिर जाएं, यहाँ पे चिपके ना. अंदर वाला हाइड्रोफिलिक, ताकि आपका जो स्पुटम गया है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए. और बीच के अंदर में फिल्टर. ये 3 लेयर्स होना जरूरी है फॉर प्रोटेक्शन. देयर इज नो पॉइंट, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर वेल important in the society. All of you can arrange surgical mask and try to wear a surgical mask. Surgical mask is not single cotton bar. सिंगल पतला कॉटन कपड़ा पहनोगे वो हाइड्रोफिलिक है, वो बाहर के सिक्रीशंस को भी एब्जॉर्ब करेगा, अंदर के सिक्रीशन को भी एब्जॉर्ब करेगा. और अगर वो सिंगल शीट है तो वो नुकसान करेगा उसके साथ में. और उसके बाद में इसके अंदर में लेयर्स बनी होती हैं. जो अंदर वाला हिस्सा है उसमें लेयर बाहर होनी चाहिए, ताकि आपका जो ड्रॉपलेट्स है इसमें जाके गिरे. बाहर वाले में वो नीचे की तरफ होना चाहिए, ताकि वो ड्रॉपलेट नीचे की तरफ गिरे, इसके ऊपर में ना चिपके उसके साथ में. That's how you have to do. Any member has any question can either raise the hand or write in the chat box and I'll take it up. Yeah, I've got a question. Yeah, even I have a question. Yes. Me also. We'll take it one by one. Kindly mute yourself. Yeah. We'll take it one by one. डॉक्टर साहब, मैं बात कर रहा था हर्ड इम्यूनिटी की, कि इसकी भी बात हो रही है कि अगर हर्ड इम्यूनिटी को प्रमोट हम करते हैं तो शायद इससे बेटर हो सकता है. क्योंकि जो आप 60% की बात कर रहे थे अभी, अगर पूरे इंडिया में या पूरे उसमें 60%, तो उस पर कुछ बोलना. ब्रिटिश में, यूके ने ये बात करी थी. यूके ने कहा था सारे यंगस्टर पॉपुलेशन को ग्राउंड में लगा के उनको वायरस एक्सपोज कर दो 60% लोगों को, तो बूढ़े लोग सारे बच जाएंगे और बच्चे लोगों में इनमें मोर्टेलिटी कम है तो हो जाएगा. बट द आंसर इज नो. वी स्टिल डोंट नो कि ये इन्फेक्शन 1 साल के बाद दोबारा आएगा कि नहीं आएगा. हर्ड इम्यूनिटी तब करते हैं जब वायरस एक बार आ जाए, दोबारा ना आए. कोरोना की बाकी वायरसेस, अगर ये वैक्सीन भी आएगा, ये 1 साल इसकी इम्यूनिटी रहेगी कि नहीं पता नहीं. जिन लोगों को कोरोना हो गया 1 साल के बाद दोबारा आएगा कि नहीं आएगा हमें पता नहीं. आज की डेट में वी डोंट नो सो मेनी थिंग्स. हमें ये भी नहीं मालूम कि कुछ गैंगस्टर हमारे यहाँ पे अंदर रह जाएंगे हमारे पेट, हमारे शरीर में, और वो 2 महीने के बाद में दोबारा उभर के आ जाएंगे. वी डोंट नो. देयर आर नो आंसर्स एज ऑन टुडे that our immunity is long lasting or not. कितना काम करेगी, कितना नहीं करेगी, we have no answer. एक दूसरा क्वेश्चन है मेरा, क्विक क्वेश्चन, कि अभी हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं कि डेथ रेट इतना है, लेकिन हम जब तक हम मास टेस्टिंग नहीं करेंगे तो एक्चुअली में पता ही नहीं चल पा रहा है कि कितने लोगों को इन्फेक्शन हो रखा है. So the death rate we don't calculate, we don't see the deaths. We see deaths in symptomatic cases. In India we are only checking symptomatic cases. Therefore in a symptomatic, जिसको तकलीफ हो गई है, उसमें डेथ रेट 1 to 2% होगा. और अगर आप एसिम्प्टोमेटिक को साथ में गुनोगे तो फिर डेथ रेट विल बी लेस देन 0.7%. Okay, so that is the calculation. हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज सिम्प्टोमेटिक केसेस. अगर आपको तकलीफ हो गई तो डेथ रेट 1 to 2% है. इंडिया का डेथ रेट 3% है. द रीजन बीइंग हाई रिस्क केसेस को, जो बड़े लोग हैं, जो उन लोगों को ज्यादा हो रहा है, उसमें रेट 3% होगा. Okay, Dr. Saab, एक निखिल जी member हैं, he'd like to ask a question, please. Namaskar, Dr. Saab. नमस्कार. Dr. Saab, I've been following you with a lot of interest right from the days you have been talking since you spoke in Khan Market for the first time, most likely, regarding COVID-19. And you've been among the doctors who have been most active in media and in the forefront
when it comes to giving education to the public on the news channels. My question to you is that as we are seeing that the world is still learning a lot about COVID-19 yet, it has been 6 months, but still the world is learning. US is learning, even WHO is still learning, wherein they are changing their whatever they are advising to the public. There have been changes over the past few weeks we have seen. For example, they have claimed that yes, you can have a herd immunity, wherein now they have withdrawn from that claim, and they have told countries like Australia that if you are giving certificates to the patients who have come out of COVID, stop giving certificates, because that will instill a wrong sense of them being safe. So my question too is very simple, Dr. Saab, that by when do you foresee, as a senior doctor in India, that the world should be able to learn enough about COVID to taking out a vaccine is a different thing altogether, but to be able to actually bottom down at the solution, because we are still going on learning, as I'm seeing. It's something so new, something created or got by us, which is so different that हम लोग अभी तक सीख नहीं पा रहे हैं पूरा इसके बारे में. ये कह रहे हैं कि आप मैनेज कैसे कर सकते हो? How we can manage it? कोविड ने हमें सिखा दिया है, क्योंकि आप जब तक सीखोगे तब तक कोविड-20 आ जाएगा कोविड-19 से. So forget about that कि हमें क्या सीखना है. He has taught us the prevention. COVID has taught us social distancing क्या होता है, no emotional distancing. We have physical protection equipment. He is talking about now emotional protective equipment. He has taught us how to live. He has taught us about cleaning, cough etiquettes, respiratory hygiene. अब आप क्या देखोगे? अब आप देखना टाइफाइड इंडिया से खत्म हो जाएगा, जॉन्डिस खत्म हो जाएगा हमारी कंट्री से, बिकॉज इतना हाथ धोगे तो कहाँ से आएगा? ओरोफिकल डिसीजेज सारी खत्म हो जाएंगी, दूसरे निमोनियाज कम हो जाएंगे. बच्चों में जो इतने जो 3 लाख लोग भारत में हर साल डायरिया से मरते थे, वो सब खत्म वो कम हो जाएगा. हाँ, तो इट इज टीचिंग अस समथिंग फॉर गुड. तो ऐसे जितनी लर्निंग होगी उतना अच्छा होगा. मैं तो कहता हूँ ये लर्निंग 3 साल तक चलती रहे ताकि बाकी बीमारियां खत्म हो. Doctor Saab, we have another member, Harsh, would like to ask you a question. Harsh ji. हाँ जी, thank you sir. Dr. Saab, there was one study in which is coming on the media which keeps on saying there are a lot of cardiac arrests happening in youngsters because of this virus. Can you please put some light on that? So 10% the virus is causing proteon manifestation. It can cause Guillain-Barré. It can cause meningitis. It can cause encephalitis. It can cause loss of taste, loss of smell. It can cause walking dead. Walking dead means आप चल के आ रहे हो और डॉक्टर बोल रहे हैं 2 घंटे में मरने वाले हो. And you say, भाई मैं तो ठीक हूँ. That is called walking dead. That your oxygen is 40, but you are still conscious. And that condition can happen. You can have pulmonary embolism. You can have heart involvement called myocarditis. You can have kidney failure. There is nothing which cannot happen with COVID. जो क्लासिकल एग्जाम्पल है वो था इटालियन जो जयपुर में आए थे, कोविड से ठीक हुए, हार्ट अटैक से मर गए. दैट वाज अ टिपिकल कोविड डेथ. कोविड डेथ कैन डेवलप मायोकार्डाइटिस, इट कैन कॉज सडन कार्डियक डेथ. We call these conditions as walking dead. Walking dead means either you are walking in all right, and second is that आप बिल्कुल ठीक और एकदम से मर गए. So myocarditis is a known complication where you can die suddenly. So therefore, don't ignore COVID. Once the COVID is there, you need to take rest, rest, and rest. Every system of the body needs to be involved. Tomorrow, the practice will be, जो इस वक्त में practice हो रही है, ये practice होने वाली है. आप क्या कहोगे कि डॉक्टर साहब मेरे को कोविड हो गया है, मेरे को सांस फूल रहा है, मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूंगा, सामने वाली स्क्रीन में एक लंग स्पेशलिस्ट को, एक इंटेंसिविस्ट को, कार्डियोलॉजिस्ट को, सबको इकट्ठे बुलाऊंगा, बात करेंगे. दैट इज गोइंग टू बी द कंसल्टेशन ऑफ टुमारो. पहले होता था ना हॉस्पिटल में कि हमारे को डॉक्टर आते हैं और इतने सारे डॉक्टर आपस में बात नहीं करते. अब जो डिस्कशन होगा पेशेंट का वो जूम पे होगा, जहाँ पे आप लोग भी साथ में होंगे, सारे डॉक्टर्स मिलकर डिसाइड करेंगे आपको क्या करना है. दैट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर. गो अहेड. Sharad ji, please ask your question. At 5 o'clock, I have to be in another Zoom call. So yeah. I have last 2 questions. Yeah, Sharad ji and then Sanjay ji. Sharad ji. Side. My question is, when this virus started, it was said that when it becomes hot, this virus is going to die. Yes, so quickly, I'll answer you. There are 2 types of transmission. One is called as a droplet transmission. One is surface to human transmission.
ड्रॉपलेट जो होता है इसका साइज 5 माइक्रोन से ज्यादा होता है, जमीन पे गिरेगा, अगर जमीन गर्म होगी तो ये मर जाएगा। सरफेस टू ह्यूमन ट्रांसमिशन गर्मी में मर जाएगा, ह्यूमिडिटी होगी तो जल्दी मर जाएगा। लेकिन मेरे शरीर का टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा ना, सनलाइट मेरे शरीर के अंदर तो नहीं जा रही। आपके घर में जो एसी लगा हुआ है वहां तो सन नहीं आ रहा, जो होटल्स हैं, जो मॉल्स हैं, जो सेंट्रल एसी हैं, वहां पे तो गर्मी नहीं आ रही। सो देयरफॉर इन हीट surface to human transmission will reduce, but human to human transmission will remain. The transmission may, your doubling time from 10 days may become 12 days, but it is not like them कि आपका zero हो जाएगा। Zero तो तभी होगा जब कोई दवाई आ जाएगी। वैक्सीन को भूल जाओ। We all should concentrate and pray कि एक दवाई आ जाए, एक खाएं और वायरस मर जाए। Last question. Sanjay ji, please, Sanjay Rastogi ji. Thank you, Ambi. Doctor, do Indians have better immunity, and does the BCG vaccine? We don't know. Indians have a lower mortality rate. So is Bangladesh, Pakistan, and Sri Lanka. So we all, Nepal, we all have the same trait. We are, most of them as either Aryans or Dravidians. Some of us are Mongolians. Even in China, the mortality rate is low. And we don't know why the mortality rate is very high in North America and in Europe. We have no answer. BCG is one theory. Social culture is another theory. And distancing, हम लोग जो नमस्ते करते हैं, is another theory. हमको 1 second लगा नमस्ते करने के लिए, सीखने के लिए वापस हाथ मिलाना। किसी को बुरा नहीं लगा कि हमने हाथ मिलाना बंद कर दिया। So we adopted to the situations much earlier than the West. I hope कि ये वायरस ऐसे ही रहे, हमारे भारतीयों को मौका दे वर्ल्ड को लीड करने के लिए। आप सब लोगों को मेरा कोरोना नमस्ते। I call it as a Corona Namaste because still all people of all religion understand that Namaste is no more a word of Hinduism, it's a word of the whole world. Namaste. डॉक्टर साहब ये ऑर्गेनिक वायरस है या लैब मैन्युफैक्चर्ड वायरस है? अभी कह नहीं सकते आज की डेट में। We have to answer. America is not the boss and China is not reliable. So we don't know. We don't know. The medical fraternity and everybody is asking China कि आप अपनी लेबोरेटरी में WHO को जाने दो और उनको चेक करने दो कि ये लेबोरेटरी प्रोड्यूस वायरस है कि नहीं है। China at the moment is not cooperating with any nation. They are not reliable at the moment. So we don't know. We have no answer. So I'm going to say thank you to everybody. Love to interact with you much more. I would like your club to host a district meeting, call all the presidents of all the district, and I would love to answer and interact with all of you. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Saab. Thank you very much. Thank you so much for being here. एक लास्ट चीज मैं पूछना चाहूंगा, अगर बियॉन्ड डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हम पैन इंडिया काम कर रहे हैं, अगर बड़ी गैदरिंग को एड्रेस करना हो, will you be available? I am for COVID. I am available 24 hours a day. Thank you. 365 days a year. So we will certainly do that. Okay. Thank you. Thank you.